तो डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी वो होती है जो एम करती है ब्रॉड पास मार्केट में और इन्वॉल्व करती है क्रिएशन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस जो कस्टमर जो है उसे यूनिक परसीव करे. तो द स्ट्रैटेजी इज एम्ड एट ब्रॉड मास मार्केट or and involves the creation of a product of service that is perceived by the customers as unique. Broad mass market creation of product or service that is perceived by the customer as unique. Uniqueness क्या हो सकती है? Brand image, product design. Uniqueness can be associated with the product design, brand image, features, technology, dealer network or customer service. तो डिफरेंशिएशन जो है वो गारंटी नहीं करता कॉम्पिटिटिव एडवांटेज स्पेशली स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स एंड सफिशिएंटली मीट कस्टमर नीड्स और ए प्रेफर्ड इमिटेशन बाय कॉम्पिटिटर्स इज पॉसिबल. ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स प्रोटेक्टेड बाय बैरियर्स टू क्विक इमिटेशन बाय कॉम्पिटिटर एरियाज आर बेटर. Successful differentiation can mean Successful differentiation can mean greater product flexibility, greater compatibility, lower cost, improved service, less maintenance, greater convenience, or more features. Lower cost, greater compatibility, greater flexibility, greater flexibility, lower cost, improved product service, less maintenance, greater convenience, or more features. Product development is an example of a strategy that offers advantages of differentiation. Differentiation strategy should be pursued only after a careful study of buyers' needs and preferences to determine the feasibility of incorporating one or more differentiating features into a unique product that features the customer desired attributes. सक्सेसफुल डिफरेंशिएशन जो अलाउ करेगा फर्म को चार्ज करने के लिए हायर प्राइसेस फॉर इट्स प्रोडक्ट एंड गेन कस्टमर लॉयल्टी बिकॉज कंज्यूमर्स में बिकम स्ट्रांगली अटैच टू द डिफरेंशिएटेड फीचर्स. और वो स्पेशल फीचर्स क्या हो सकते हैं? सुपीरियर सर्विस, स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी, इंजीनियरिंग डिज़ाइन, प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, यूजफुल लाइफ, गैस माइलेज और ईज ऑफ यूज़. तो सुपीरियर सर्विस, स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, इंजीनियरिंग डिज़ाइन, प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस, यूजफुल लाइफ, गैस माइलेज और ईज़ ऑफ यूज़. तो सुपीरियर सर्विस, स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, इंजीनियरिंग डिज़ाइन, प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस, यूजफुल लाइफ, गैस माइलेज और ईज़ ऑफ यूज़. तो हो सकते हैं स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, सुपीरियर सर्विस, ईज़ ऑफ यूज़, गैस माइलेज, प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, यूजफुल लाइफ, इंजीनियरिंग डिज़ाइन. नाउ a risk associated with pursuing differentiation strategy is that the unique product may not be valued high enough by customers to justify the higher price. When this happens, a cost leadership strategy will easily defeat a differentiation strategy. Another risk of pursuing a differentiation strategy is that competitors may develop ways to copy the differentiating features quickly. Firms must find durable sources of uniqueness that cannot be imitated quickly or cheaply by rival firms. For example, Amazon Prime offers delivery within 2 hours. This is quite difficult to imitate by its rivals, and thus the differentiating factor helps it to lead the market. Basis क्या हो सकता है differentiation के? PPO, product pricing and organization. There are several bases of differentiation: product prices and organization. Product क्या होता है? Innovative products जो meet करते हैं customer की needs को can be area where a company has an advantage over competitors. However, the pursuit of a new product offering can be costly. Research and development, as well as production and marketing costs, can all add to the cost of production and distribution. The payoff, however, can be as great as customers flock to be among the first to have new product. Apple iPhone has invested huge amounts of money in research and development, and the customers value that. Pricing say it fluctuates based on its supply and demand and may also be influenced by the customer's ideal value for a product. तो सप्लाई और डिमांड के बेसिस पे जो है प्राइसेस फ्लक्चुएट करते हैं और कस्टमर की आइडियल वैल्यू पे भी डिपेंड करते हैं. ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंशिएशन इज येट अनदर फॉर्म ऑफ maximizing the power of a brand or using the specific advantages that an organization possesses can be instrumental to company's success. नाउ मूविंग ऑन टू हम डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी को है ना कैसे अचीव कर सकते हैं. 6 तरीकों से है जो डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी अडॉप्ट हो सकती है. ऑफर करना यूटिलिटी टू द कस्टमर्स,
और मैच करना प्रोडक्ट्स विद देयर टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस. Offer utility to the customers and match products with their tastes and preferences. Offer utility to the product and match products with their tastes and preferences. Offer utility to the product and match products with their tastes and preferences. नाउ ऑफर करना यूटिलिटी पहले कस्टमर्स को, और फिर मैच करना प्रोडक्ट्स उनके टेस्टेस एंड प्रेफरेंसेस के हिसाब से. फिर एलिवेट एंड इम्प्रूव करना परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट. एलिवेट एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट. Elevate and improve performance of the product. Offer करना high quality product and service for buyer satisfaction. Rapid product. Rapid product innovation to keep up with dynamic environment. तो रैपिडली प्रोडक्ट का इनोवेशन करना ताकि डायनेमिक एनवायरनमेंट में वो सर्वाइव कर सके. इम्प्रूव करना परफॉर्मेंस प्रोडक्ट की. हाई क्वालिटी प्रोडक्ट की सर्विस प्रोवाइड करना फॉर बायर सेटिस्फेक्शन. ऐसे स्टेप्स लेना फॉर एनहेंसिंग ब्रांड इमेज एंड ब्रांड वैल्यू. तो टेकिंग स्टेप्स फॉर एनहेंसिंग ब्रांड इमेज एंड ब्रांड वैल्यू. फिक्स करना प्रोडक्ट प्राइसेस बेस्ड ऑन द यूनिक फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट और बाइंग कैपेसिटी ऑफ द कस्टमर. तो फिक्स करना प्रोडक्ट के प्राइसेस बेस्ड ऑन द यूनिक फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट एंड बाइंग कैपेसिटी ऑफ द कस्टमर. ऐसे इस वे में प्रोडक्ट के प्राइसेस को फिक्स करना जो यूनिक फीचर्स पे बेस्ड हो प्रोडक्ट की, और बाय करना कैपेसिटी ऑफ द कस्टमर एंड बाइंग कैपेसिटी ऑफ द कस्टमर. तो ऐसे प्रोडक्ट प्राइसेस फिक्स करना जो बेस्ड ऑन द यूनिक फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट एंड बाइंग कैपेसिटी ऑफ द कस्टमर. तो 6 तरीके अचीव करने के. पहला, ऑफर करना यूटिलिटी टू द कस्टमर. मैच करना टेस्टेस एंड प्रेफरेंसेस. मैच करना प्रोडक्ट को विद उनके टेस्टिंग और टेस्टेस और प्रेफरेंसेस के हिसाब से. फिर एलिवेट और इम्प्रूव करना परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट. फिर ग्रेटर क्वालिटी, हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइड ऑफर करना फॉर बायर सेटिस्फेक्शन. रैपिड प्रोडक्ट इनोवेशन टू कीप अप विद डायनेमिक एनवायरनमेंट. स्टेप्स लेना फॉर एनहेंसिंग ब्रांड इमेज एंड ब्रांड वैल्यू. फिक्स करना प्रोडक्ट प्राइसेस बेस्ड ऑन द यूनिक फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड बाइंग कैपेसिटी ऑफ द कस्टमर. तो ऑफर यूटिलिटी टू द कस्टमर. मैच देयर प्रोडक्ट्स विद देयर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. एलिवेट एंड improve the performance of the product. Offer the high quality product service for buyer satisfaction. Rapid product innovation to keep up with dynamic environment. Taking steps for enhancing brand value and brand image. Fixing the product prices based on the unique features of product and buying capacity of the customer. Now advantages क्या है differentiation strategy के. Rivalry, buyers, suppliers, entrant, substitutes. Buyers, suppliers, entrants and substitutes. तो brand loyalty है जो act करती है as a safeguard against the competitors. Brand loyalty act as safeguard against competitors. It means that customers will be less sensitive to price increases as long as the firm can satisfy the needs of its customer. तो ब्रांड लॉयल्टी जो है सेफगार्ड की तरह वर्क करती है, और जो कस्टमर्स होंगे वो लेस सेंसिटिव होंगे टू प्राइस इंक्रीजेस एज लॉन्ग एज द फर्म कैन सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स. और बायर्स जो है नेगोशिएट नहीं करेंगे फॉर प्राइस एज उन ताकि क्योंकि उनको स्पेशल फीचर्स मिल रहे हैं और बहुत फ्यूअर ऑप्शंस है मार्केट में. तो दे डू नॉट नेगोशिएट फॉर प्राइस एज दे गेट स्पेशल फीचर्स एंड दे हैव फ्यूअर ऑप्शंस इन द मार्केट. अब डिफरेंशिएशन की वजह से जो सप्लायर है वो प्रीमियम प्राइस चार्ज कर पा रहा है. डिफरेंशिएशन चार्ज है प्रीमियम प्राइस, दे कैन अफोर्ड, सॉरी, डिफरेंशिएशन में ना वो हाई प्रीमियम प्राइस जो चार्ज कर रहे हैं फ्रॉम कस्टमर्स, तो जिसकी वजह से ना वो सप्लायर की हायर कॉस्ट को है ऑब्जर्व कर सकते हैं एंड कस्टमर्स भी विलिंग है एक्स्ट्रा पे करने के लिए. तो बिकॉज डिफरेंशिएटर्स चार्ज प्रीमियम प्राइस, दे कैन अफोर्ड to observe high cost of suppliers as the customers are willing to pay extra too. अब इनोवेटिव फीचर्स ना बहुत एक्सपेंसिव ऑफर है, तो न्यू एंट्रेंट्स जनरली अवॉइड करेंगे ऐसे फीचर को बिकॉज इट इज़ टफ फॉर देम टू प्रोवाइड द सेम प्रोडक्ट विद स्पेशल फीचर्स एट अ कंपेरेबल प्राइस. तो इनोवेटिव फीचर जो एक्सपेंसिव ऑफर है तो न्यू एंट्रेंट्स जो है अवॉइड करेंगे इस चीज़ को बिकॉज ये टफ है फॉर देम टू प्रोवाइड द सेम प्रोडक्ट विद स्पेशल फीचर्स एट अ कंपेरेबल प्राइस. और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स जो है रिप्लेस नहीं कर पाएंगे डिफरेंशियल प्रोडक्ट्स को बिकॉज उनकी हाई ब्रांड वैल्यू है, एंजॉय करते हैं कस्टमर लॉयल्टी. डिसएडवांटेज क्या है? तो लॉन्ग टर्म में ना यूनिकनेस जो है डिफिकल्ट है टू सस्टेन. यूनिकनेस इज, ये क्या हो रहा है? Uniqueness is difficult to sustain. Charging too high price for a differentiate feature may cause the customer to switch off to another alternative.
as we can shift of iPhone users to other Android flagship smartphones. Differentiation fails to work if its basis is something that is not valued by the customers. तो differentiation जो है fails to work अगर वो ऐसे कुछ पे बेस है जो वैल्यू नहीं हो पाता, वैल्यू नहीं करता कस्टमर, या फिर बहुत ज़्यादा प्राइस चार्ज करेंगे तो वो स्विच कर सकता है अनदर अल्टरनेटिव की तरफ, और यूनिकनेस है जो डिफिकल्ट है टू सस्टेन। ना फोकस स्ट्रेटजी क्या होती है? फोकस स्ट्रेटजी बेसिकली नैरो मार्केट पे फोकस करती है। तो फोकस कॉस्ट लीडरशिप में क्या बोलता है? बेस्ड ऑन अ प्राइस टू टारगेट अ नैरो मार्केट। तो फोकस कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी रिक्वायर्स competing बेस्ड ऑन प्राइस टू टारगेट अ नैरो मार्केट। और फोकस डिफरेंशिएशन में वो यूनिक फीचर्स ऑफर करेंगे जो फुलफिल करती है डिमांड नैरो मार्केट की। तो ऑफरिंग यूनिक फीचर्स दैट फुलफिल डिमांड ऑफ अ नैरो मार्केट। अब फोकस स्ट्रैटेजी हम कैसे अचीव कर सकते हैं? 4 तरीके हैं। इनोवेटिव वेज डेवलप करके, सुपीरियर स्किल्स को क्रिएट करके नीच मार्केट के लिए, या फिर जनरेट करके हाई एफिशिएंसीज फॉर सर्विंग सच नीच मार्केट्स, या फिर सेलेक्ट करना स्पेसिफिक नीच विच इज़ नॉट कवर्ड बाय द कॉस्ट लीडर्स या डिफरेंशिएटर्स। तो पहला तो हम सेलेक्ट करेंगे स्पेसिफिक नीच जो कवर्ड नहीं है बाय कॉस्ट लीडर्स एंड डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएटर्स, या फिर हम क्रिएट करेंगे सुपीरियर वैल्यूज फॉर केटरिंग सच नीच मार्केट्स। फिर हम जनरेट करेंगे हाई एफिशिएंसीज फॉर सर्विंग सच नीच मार्केट्स, एंड फिर डेवलप करेंगे इनोवेटिव वेज इन वैल्यू चेन। We're selecting specific niche which are not covered by the cost leaders, so, and differentiators, creating superior skills for catering such niche markets, generate करना high efficiencies for serving such niche market, फिर develop करना innovative ways in managing the value chain। अब जो है कैसे हम एडवांटेजेस क्या है फोकस स्ट्रेटजी के? ओह शिट। हाँ, तो प्रीमियम प्राइसेस जो है हम चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन फोकस्ड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फॉलो कर रही है, सॉरी, एक ऑर्गेनाइजेशन अपने फोकस्ड प्रोडक्ट और सर्विस के लिए प्रीमियम प्राइजेस जो है चार्ज कर सकती है। तो प्रीमियम प्राइजेस कैन बी चार्ज बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर देयर फोकस्ड प्रोडक्ट और सर्विस ड्यू टू ट्रेमेंडस expertise in the goods and service. The organization following focus strategy offer rivals and new entrants may find it too difficult to compete. तो ट्रेमेंडस एक्सपर्ट की वजह से गुड्स एंड सर्विस में जो ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रही है फोकस स्ट्रेटजी, राइवल्स एंड एंट्रेंस को है जो डिफिकल्ट लग सकता है टू कम्पीट। तो प्रीमियम प्राइसेस एंड डिफिकल्ट टू कम्पीट। अब डिसएडवांटेज क्या है? जो फर्म है ना लैक करे डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज, वो फॉलो नहीं कर पाएगी फोकस स्ट्रेटजी को। लिमिटेड डिमांड, सॉरी, मे नॉट बी एबल टू परस्यू फोकस स्ट्रेटजी, और लिमिटेड डिमांड की वजह से जो कॉस्ट हाई हो जाएगी, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, और लॉन्ग रन में जो लार्ज कॉम्पिटिटर्स है वो अक्वायर कर लेंगे ये ऐसे डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंट्स को, और जो नीच है वो डिसअपियर हो जाएगी। तो फर्म्स लैकिंग इन डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी मे नॉट बी एबल टू परस्यू फोकस स्ट्रेटजी। लिमिटेड डिमांड की वजह से कॉस्ट हाई होगी जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, और लॉन्ग रन में नीच डिसअपियर हो सकती है, क्योंकि इट कुड बी टेक ऑन द लार्ज कॉम्पिटिटर्स बाय एक्वायरिंग द सेम डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज। अब बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटजी का ये डायग्राम है। लोअर कॉस्ट डिफरेंशिएशन, ओवरऑल लो कॉस्ट लीडरशिप, ब्रॉड डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी, फोकस एंड फोकस, ठीक है। बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर, तो बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर में क्या इन्वॉल्व है? बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग कस्टमर्स मोर वैल्यू फॉर द मनी बाय एम्फेसिसिंग ऑन लोअर कॉस्ट एंड बेटर क्वालिटी डिफरेंसेस। इट कैन बी डन थ्रू ऑफरिंग, या तो हम लो प्राइस ऑफर करेंगे फॉर द प्रोडक्ट्स दैट इज बीइंग सॉरी, जो प्रोडक्ट्स राइवल ऑफर कर रहे हैं ना उन्हीं प्रोडक्ट्स के लिए या तो हम लोअर प्राइस चार्ज करेंगे, या फिर हम सिमिलर प्राइसेस चार्ज करेंगे बट हायर क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे। तो ऑफरिंग प्रोडक्ट्स एट लोअर प्राइस देन व्हाट इज बीइंग ऑफर्ड बाय राइवल्स फॉर प्रोडक्ट्स विद कंपेरेबल क्वालिटी एंड फीचर्स। तो ऑफर करना प्रोडक्ट्स को लोअर प्राइस पे देन व्हाट इज बीइंग ऑफर्ड बाय राइवल्स फॉर प्रोडक्ट्स विद कंपेरेबल क्वालिटी एंड फीचर्स, या फिर चार्ज करना सिमिलर प्राइस एज बाय द राइवल्स फॉर प्रोडक्ट्स विद मच हायर क्वालिटी एंड बेटर फीचर्स। इसका एग्जाम्पल हो सकता है वन प्लस, यामी, ओप्पो, वीवो एक्सेट्रा। तो यहाँ हमारा जो है चैप्टर 3 कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको मेरे रिविजन वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड ऑल्सो वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।